Okay, students, so let us start today's class. On last two lectures, we were discussing the finite automaton with output capabilities. We have discussed two machines, Moore machine and Millet machine. We have discussed their formal definitions, what they mean, their transition table and transition diagram representations. This is for both. And then we have seen some of the design examples for Moore machines and Millet machines. And we have found that our Millet machines are specifically very much useful in electronic circuitry design. We have designed a few machines like one's complementer, and then incrementer, then adder, and then we have discussed that with the help of this we can design the subtractor also. Similarly, much more complicated circuitry can also be designed. Okay, so but we have taken only the simple kind of design machines, okay, because that is the part of our syllabus only. Now our today's agenda is to discuss the equivalence of Moore machine and Millet machine. So as we have discussed FAs, we have discussed a variety of FAs like DFA, NFA, epsilon and FA, and then we have discussed that all those represent the same set of languages that is called as the regular languages, which are represented by the regular expression. So in the similar manner of both the output machines, Moore machine and Millet machine, they are equivalent. So first of all, we will discuss what will be the criteria for their equivalence. Then we will be discussing how we can convert if a Moore machine is given to us to the corresponding Millet machine, and the reverse of it. That is, if a Millet machine is given to us, how we can convert it to a corresponding Moore machine. Is it? So this is our today's agenda. Let us start with this. First of all, we will discuss the criteria of equivalence. So we have also discussed the equivalence of FAs. So two DFAs we were comparing with the help of a comparison table, and we say that our two given DFAs are equivalent if they accept the same language. But in case of output automata, there is no final state. So basically our output automata do not define any language. So on the basis of this, we cannot establish a equivalence between the output automatons. So certainly the criteria for the equivalence of output automaton should be somewhat different. So criteria for the equivalence of the two output automaton is if they always give some same output string when presented with the same input string. यानी कि अगर आप एक input string एक Moore मशीन को दीजिए और एक Millet मशीन को दीजिए, अगर दोनों के आउटपुट सेम आते हैं, then we say that these two machines are equivalent. यानी कि वो दोनों सेम इनपुट पे सेम आउटपुट प्रोड्यूस करें. So corresponding to every input which is given to the Millet and Moore machine, they give us the same output. Only then we will say that two output automata are equivalent. But in this manner also we cannot compare a Millet machine with a Moore machine. Why we cannot compare? Because the length of the output. We know that length of the output in the Moore machine is 1 more than that of Millet machine. तो Millet machine में जो हमारा output आएगा उसकी लेंथ उतनी ही होगी जितना हमारा इनपुट की लेंथ है. वाइल Moore मशीन के केस में हमारे आउटपुट की लेंथ क्या होगी? इट विल बी 1 मोर देन द लेंथ ऑफ द इनपुट. यानी कि Moore और Millet मशीन का आउटपुट तो कभी सेम हो ही नहीं सकता. ऐसा क्यों है? क्योंकि Moore मशीन हमेशा एक आउटपुट सिंबल से स्टार्ट करती है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टार्ट स्टेट. सो व्हेनेवर वी एंटर into the start state, so this symbol automatically gets printed. Means without reading anything from the input, this output symbol is being generated. So that's why the length of the Moore machine is always 1 greater than the length of the input, while the length in case of Millet machine is just equal to the length of the input. So जब दोनों की length ही बराबर नहीं, so how we can compare these two? Okay, so we cannot compare in this manner. Okay, now to get around this difficulty, what we do, we define a Millet machine equivalent to a Moore machine when they always result in the same output on presenting the same input symbol, provided the automatic output symbol for the start state is removed from the output of the Moore machine. यानी Moore machine के output से अगर हम जो automatic start symbol था, जो automatic output start symbol था, अगर उसको हम remove कर दें और तब compare करें,
देन दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी। अगर उस केस में दोनों ही हमारे आउटपुट सेम हमें रिजल्ट देते हैं, सेम आउटपुट हमारे आते हैं हर इनपुट के केस में, देन हमारे जो है दोनों मशीन क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Okay, so we have established how, what will be the criteria for the equivalence of two output automatons. Now let us see their conversion to each other. If they are equivalent, they can be converted to each other, meaning thereby if MO is a Moore machine, then always there exists a Millet machine, we can call it as ME, okay, to distinguish it from the Moore machine. So that is equivalent to it. यानी कि अगर हमारे पास एक मूरे मशीन है तो हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग एक मिले मशीन हम जो है डिजाइन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डू दिस। सो वी कैन डू दिस बाय ए कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम। सो आई विल बी गिविंग यू प्रूफ, but by constructive algorithm. By constructive algorithm we mean that whatever we have to do, we will make a procedure, we will make a method, we will try to construct them. So अगर हम उसको बनता हुआ शो कर लें, and in general if that construction is correct, then it is the proof by constructive algorithm. So we will be finding a constructive algorithm which can convert our given Moore machine to the corresponding Millet machine. So given Moore machine will get converted to the corresponding Millet machine. So for this, let us consider a particular Moore machine. Moore machine है हमारे पास, एंड इस मूरे मशीन में हम पूरी मशीन को नहीं ले रहे हैं, हम उसकी केवल एक स्टेट को कंसीडर करें। सपोज देयर इज ए स्टेट Q इन अवर मूरे मशीन। अगर ये मूरे मशीन है तो हर स्टेट के साथ एक आउटपुट होगा। सो सपोज T इज द आउटपुट सिंबल विच इज प्रिंटेड बाय दिस पर्टिकुलर स्टेट Q in our Moore machine. So we are talking about MO, that is the Moore machine. So we have taken a particular state of this Moore machine, that is the state Q, which is printing the output instruction T. Is it? There will be certain edges coming inside this particular state. Say these edges are corresponding to symbol A, B and C. So on different symbols there are edges incoming into this particular state. Okay. अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसे मूरे मशीन को मिले मशीन में कन्वर्ट करना है, तो मूरे मशीन में क्या होता है कि जो आउटपुट है वो स्टेट के अंदर नहीं होता, वो कहाँ होता है, ट्रांजिशंस पे होता है। वो कहाँ होता है, ट्रांजिशंस पे होता है। सो मूरे मशीन में क्या, जैसे ही हम इस क्यू स्टेट में एंटर करते हैं वैसे ही हम एक टी प्रिंट करते हैं। तो अगर इसकी इक्वलेंट पोजीशन, इसकी कोई इक्वलेंट मशीन अगर मेरे को बनानी है, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि व्हेनेवर आई एम एंटरिंग इनटू द स्टेट क्यू, टी शुड गेट प्रिंटेड। अगर मैं ये इंश्योर कर लूं, तो मेरी मशीन क्या होगी, गिवन मशीन के इक्वलेंट होगी। अब मिले मशीन में क्या होता है, जो ट्रांजिशन कहाँ होते हैं, वो इनपुट सिंबल्स के साथ होते हैं, ट्रांजिशंस पे होते हैं। जो आपके आउटपुट होता है वो कहाँ होता है, ट्रांजिशंस पर होता है। इज इट? सो आउटपुट कहाँ आना है, स्टेट में ना करके ट्रांजिशन में आना। तो हम क्या करते हैं, इस आउटपुट को यहाँ से रिमूव करते हैं, स्टेट से रिमूव करते हैं और ट्रांजिशंस पे अप्लाई कर देते हैं। सो हमारी जो मशीन की एक पर्टिकुलर स्टेट है वो क्या बन जाएगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी Q. नाउ देयर विल बी नो आउटपुट इन दिस स्टेट, बट ऑल द इनकमिंग एजेस which were originally labeled suppose A, so it will be labeled by A by T. Means whenever you are visiting this particular edge, reading an input A, किसी particular state से आ रहे होंगे, reading an input A, so we will print a T because we are entering into the state Q. In the similar manner, on the second one it will be labeled as B oblique T. On the third one it will be labeled as C oblique T. Is it clear or not, class? Yes, sir. Okay. Now we will repeat the same process. We will repeat the same process for every state in our Moore machine. अगर हम for each state अगर इसको apply करें, for each state if we apply this, then our Moore machine will get converted into the Millet machine. अब आप कहेंगे इसमें जो इस state से बाहर जाने वाले transitions थे उनको हमने कंसीडर नहीं किया। उनको हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो ट्रांजिशंस तब कन्वर्ट हो जाएंगे, तब लेबल हो जाएंगे आउटपुट से, जब जिन स्टेट्स को वो लीड करते हैं उन स्टेट्स को हम प्रोसेस करेंगे। इज इट? जैसे क्यू में एंटर करता हुआ हमने प्रोसेस किया था, सपोज यहाँ से ये वाला ट्रांजिशन किसी पर्टिकुलर स्टेट
suppose Q1 पे जाता है. So whenever we will process Q1, then this particular transition will be corrected. यहाँ पे केवल इनपुट सिंबल के बजाय इनपुट और आउटपुट सिंबल दोनों आ जाएंगे. वो किस बेसिस पे आएगा कि Q1 स्टेट में मेरे कौन सा आउटपुट इंस्ट्रक्शन था. Is it? So in this manner we can convert a Moore machine into the corresponding Millet machine. I hope conceptually this process is clear to you. Class. If there is any doubt, you Yes, can ask. Okay. So conceptually, we have understood how we have to convert a Moore machine into a Millet machine. It is a very simple process. केवल क्या करना है? State से printing instruction निकाल करके incoming transitions पे apply कर देंगे. Is it? So now we'll take one example. I'm taking an example Moore machine. Okay. So this machine is somewhat like this. थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं. Okay. This is start state Q0 and it is having a printing instruction 0 and this is the start state. There is another state say Q1 with the printing instruction 1 and on A from Q0 I am moving here. Similarly, there is another state Q2 which is having the printing instruction 0 and on B from Q0 I am moving to this state. Then there is another state say Q3 which is also having the printing instruction 1. Okay, and from Q1 on A I am moving to Q3 and on B I am moving to Q2. On B I am moving to Q2. Okay, and then from Q2 on A I am having a self loop and on B I am moving to Q3 and from Q3 both on A and B I am having a self loop. Okay, now I am making its transition table as well. There are the method which we have just discussed. It can be directly applied to this transition diagram and we can convert a Moore machine into the Millet machine. But we can also do it with the help of a transition table. So that's why I am writing its transition table as well. So it is the transition table will be something like this: old state. Okay. And then it will be the output by old state, output by old state. Okay, and then new state. It will be divided into the two columns, that is after reading A and after reading B. Okay, because there are two symbols, input symbols A and B. Okay, our states are Q0 which is the start state, Q1, Q2 and Q3. Q0 on A is giving the output 0. We can just look at the transition diagram. Q1 is giving us the output 1, so 1 here. Q2 is giving us the output 0, so 0 here. Q3 is giving us the output 1, so 1 here. Okay, now Q0 on A is moving to Q1, on B it is moving to Q2. Q1 on A is moving to Q3 and on B it is moving to Q2. Q2 on A is moving to itself, that is Q2, and on B it is moving to Q3. Q3 on both A and B is moving to Q3 itself. Okay, so I have made its transition table as well. So this is the Moore machine. This is the Moore machine which I am having, which I want to convert into the corresponding Millet machine. Is it? So सबसे पहले तो मैं जब हमने जो प्रोसेस डिस्कस किया उस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. सपोज आई एम टेकिंग द ग्रीन कलर. ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, एक एक करके स्टेट्स लेनी है और उनको प्रोसेस करना. सपोज मैं सबसे पहले एक Q1 स्टेट ले लेता हूँ. ओके, Q1 स्टेट में प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन क्या है 1.
तो सबसे पहले मुझे ये प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ से हटानी है, ये मैंने हटा दी यहाँ से। ओके, कहाँ ले जानी है? इसमें जितनी भी इनकमिंग एजेस हैं उन पे। इस पे अगर आप देखें तो केवल एक ही इनकमिंग एज है, दैट इज दिस वन। ओके, सो मैं क्या करूंगा, इस एज पर इस प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन को ले आया, तो A/1। इज इट क्लियर class? It is clear or not? I have just applied the process which we have discussed in the last slide. Okay, now यही काम हमें क्या करना है, हर एक जो है स्टेट के लिए करना। सपोज अब की बार हम इस वाली स्टेट के लिए करते हैं, Q2 स्टेट के लिए। अब Q2 स्टेट में मेरी प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, 0, तो इससे मैंने ये प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन हटा दी, क्रॉस लगाया मैंने, यानी कि ये हटा दी गई। ओके, अब इसमें इनकमिंग एजेस कितनी, देखिए एक तो ये इनकमिंग एज आ रही है B वाली, एक ये इनकमिंग एज आ रही है B वाली, और एक ये इनकमिंग एज आ रही है, बिकॉज इट इज इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग एज। ओके, बट इनकमिंग है तो इसलिए हम इसको भी प्रोसेस करेंगे, जो सेल्फ लूप है ए पर। ये 3 एजेस हैं जो Q2 के अंदर एंटर कर रही है, तो जितनी भी एंटर करने वाली एजेस हैं उनको हमें मॉडिफाई करना है। सो B/0, B/0, A/0। इज इट क्लियर? यानी कि जब भी मैं श्योर कर रहा हूं कि जब भी मैं Q2 में एंटर करूंगा, चाहे इस पाथ से आऊं, चाहे इस पाथ से आऊं, चाहे इस पाथ से आऊं, आई विल ऑलवेज प्रिंट ए 0। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई माय मशीन विल बी द सेम वन, मेरा आउटपुट वही आएगा जो मेरा मूरे मशीन से आ रहा था। इज इट? इसी तरह से मैं Q3 को सपोज प्रोसेस करता हूं। ओके, Q3 को मैं प्रोसेस कर लेता हूं, इसमें प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 1 है, इसको रिमूव किया। इसमें इनकमिंग एजेस कितनी है, 4, एक तो ये A, एक ये B, और एक 2 एजेस ये हैं A और B। इज इट? सो इट इज A/1, B/1। सिमिलरली हियर इट विल बी मैं ऐसे लिख देता हूँ A/1 एंड B/1। सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट। ओके, सो ये सब हो गए। अब रहेगी मेरी स्टार्ट स्टेट। अब स्टार्ट स्टेट में बाई चांस कोई भी इनकमिंग एज नहीं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं, कुछ मशीन्स ऐसी भी होंगी जिसमें आपकी कहीं से किसी स्टेट से कोई ट्रांजिशन इस स्टार्ट स्टेट में भी आ रहा होगा। बाई चांस इस पर्टिकुलर मशीन में स्टार्ट स्टेट में कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है। ओके, सो मुझे प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन तो हटानी है, तो ये तो मुझे मेरी हटेगी। अगर इसमें कोई भी इनकमिंग एज होती तो उस इनकमिंग एज पे मैं इस 0 प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन को ले जाता। बाई चांस इसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, सो सिंपली आई विल रिमूव this output 0 from here. Is it clear, class? Now I have converted my machine into the Mealy machine. So my Moore machine has been converted into the corresponding Mealy machine. It will be giving me the same output which the Moore machine was giving. उसमें से बस फर्क केवल कितना होता कि Moore machine में जो पहला 0 प्रिंट होता, वो 0 हटाने के बाद जो आउटपुट आता वही आउटपुट मुझे इस मिले मशीन से मिलेगा। सो दैट्स व्हाई बोथ मशीन्स आर इक्वलेंट। क्लास, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. प्रोसेस सिंपल है। अब हम इसी प्रोसेस को ट्रांजिशन डायग्राम से करते हैं। ओके, सॉरी, ट्रांजिशन टेबल से करते हैं। सो ट्रांजिशन टेबल ये मेरी क्या है, मूरे के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन टेबल है। मैं क्या करता हूँ, मिले के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन टेबल बना लेता हूँ। मिले के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन टेबल मेरी क्या होगी, इट विल बी समथिंग लाइक ओल्ड स्टेट, and then there will be 2 columns corresponding to the symbols. Okay, so after A and after B, और ये कॉलम्स मेरे क्या होंगे, वापस 2 कॉलम्स में सब डिवाइड होंगे corresponding to the new state and output. Similarly, it will be the new state and output. Again, मेरी states क्या है, Q0, it is my start state, then Q1, then Q2 and then Q3. अब मुझे ये ट्रांजिशन टेबल निकालनी है, ये ट्रांजिशन टेबल मेरे पास मौजूद है। इज इट? सबसे पहले मुझे इसमें क्या देखना है कि जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसको एज इट इज कॉपी करता हूँ। मींस Q0 से ऑन A आई वाज मूविंग टू Q1, Q0 से ऑन B आई वाज मूविंग टू Q2, तो सेम थिंग आई विल कॉपी हियर। सो Q0 ऑन A आई विल मूव टू Q1, Q0 ऑन B आई विल मूव टू Q2। इज इट? सिमिलर, यानी कि ये कॉलम एक तरह से यहां कॉपी करूंगा A में, जो B वाला कॉलम है ये पर्टिकुलर कॉलम जो B वाला है, इसको यहां कॉपी करूंगा इस B वाले कॉलम में। इज इट? सो सिंपल कॉपी कर लिया मैंने Q3, Q2 एंड Q3।
It is Q2, Q3 and Q3. Is it clear? सेम कॉपी कर लिया, तो ट्रांजिशन फंक्शन हमारा सेम हुआ। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, आउटपुट वाले कॉलम फिल करने हैं। अब आउटपुट वाले कॉलम में मुझे कुछ नहीं फिल करना है, मुझे केवल ये न्यू स्टेट देखनी है। जो न्यू स्टेट मेरी आई है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट है दैट आई हैव टू राइट हियर। सो Q1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ देखेंगे 1 है। इज इट इज 1। सो Q1 के आगे जहां जहां Q1 आया वहां मैं क्या लिखूंगा 1, कहीं और Q1 है नहीं। उसके बाद Q2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है मेरा 0, मैं देख सकता हूँ इस पूरे मशीन से। इज इट? सो जहां भी Q2 आ रहा है उस हर जगह पे मैं क्या मेंशन करूंगा, 0 मेंशन करूंगा। इज इट? जहां भी Q2 आ गया वहां 0 मेंशन करूंगा। अब Q3 के करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट क्या है, 1। ओके, तो जहां भी Q3 आएगा वहां मैं क्या लिखूंगा, 1। सो आई विल राइट 1 जहां भी Q3 आएगा। सो दिस विल बी माई ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन। इज इट? अब ये ट्रांजिशन टेबल मेरी सही बनकर के आई है, मैं चेक कर सकता हूँ। अभी मैंने ये मूरे मशीन को मिले मशीन, सॉरी आई हैव नॉट, जस्ट 1 मिनट, मिले मशीन का ट्रांजिशन टेबल है ये रेजर। इट इज अ ट्रांजिशन टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू दी मिले मशीन। सो मिले मशीन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन टेबल मैंने निकाला है इस मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल से, जस्ट आई विल चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो इसको आप क्या करिए, जो आपने मूरे मशीन से मिले मशीन बनाई थी उसके साथ चेक कर लीजिए। देखिए Q0 आफ्टर A it will give output 1 and move to Q1. So A it is giving output 1 and move to Q1. Q0 after B moving to Q2 and output is 0. On B moving to Q2 output is 0. Similarly you can check all the rows. Q1 on A, Q3 1, Q1 on A, Q3 and output is 1. Q1 on B, Q2 and output 0. Q1 on B, output 0 and Q2. Is it? So similarly you can check all the rows of this particular transition table for Mealy machine and you will see that it is correctly converted. This process is correctly converted Moore machine into the corresponding Mealy machine. I hope it is clear. Class. Yes sir. तो दोनों ही प्रोसेस सिंपल है। ये आप चाहे तो ट्रांजिशन डायग्राम पे अप्लाई करके बना लें, चाहे आप ट्रांजिशन टेबल पर अप्लाई करके बना लें। अगर ट्रांजिशन टेबल पर अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल क्या करना है, केवल इस मिले मशीन का ट्रांजिशन फॉर्मेट लिखना है और सबसे पहले ट्रांजिशन फंक्शन कॉपी करना है। ट्रांजिशन फंक्शन एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन में जो जो नई स्टेट जनरेट हुई है उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे मूरे मशीन में यहाँ इस कॉलम से हमें पता चल रहा है आउटपुट थे, वो आउटपुट उसके सामने लिख लेने एंड आवर मूरे मशीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग मिले मशीन। सो दिस इज वेरी सिंपल इन any manner, either through the transition diagram or through the transition table, you can convert your given Moore machine into the Mealy machine. Now we'll move to the second conversion. Okay, अगर कोई doubt हो तो पूछ लीजिए, otherwise we are moving to the second conversion. Is there any doubt, class, or we move forward? No sir, no doubt. Okay, okay. So the second thing is reverse of it, Mealy machine to Moore machine conversion. So we claim that for every Mealy machine, we are calling it as ME, there is a Moore machine MO that is equivalent to it. यानी कि corresponding to each given Mealy machine, we can convert it to the Moore machine. कैसे कर सकते हैं? Any idea? Class. देखिए Moore machine को Mealy machine में convert करने के लिए हमने क्या किया था, उससे printing instruction निकाल करके हमने क्या किया था, एजेस पे ले गए थे। अब मिले मशीन में क्या होगा, एजेस पे प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन हमें कहाँ चाहिए प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन, अब स्टेट्स के अंदर चाहिए। सो कैन वी जस्ट रिवर्स द प्रीवियस प्रोसेस? क्लास, सम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। कैन वी जस्ट रिवर्स द प्रीवियस प्रोसेस और हमारा मिले मशीन मूरे मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मूरे को मिले में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस था, हम उस प्रोसेस को केवल रिवर्स कर दें तो हमारा मिले मशीन मूरे मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज योर ओपिनियन, क्लास? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फर्स्ट स्टार्ट Yes, sir, हो सकता है। हो सकता है। एनीबडी हु इज सेइंग कि नहीं हो सकता? एनीबडी हु इज सेइंग कि नहीं हो सकता? It is not possible. It is not possible. Sir, Yes. Sir, starting
सर इसमें कोई ट्रांजिशन सर? I'm not getting your voice properly. Okay, so just stop. So I am telling you, it is not possible. Why it is not possible? हमने जब मिले मशीन डिस्कस किया था तो मिले मशीन का लास्ट एग्जांपल मिले मशीन का जब एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको जो है एक बताया था कि वी आर एंटरिंग इनटू ए पर्टिकुलर स्टेट, देन वी कैन एंटर बाय डिफरेंट रोड्स and on different roads we can have different output symbols. So meaning thereby in a Mealy machine, when we are entering into a particular state, it is not necessary that we will be printing the same instruction through all the incoming edges. No, it is not. We may have different incoming different printing instructions on the incoming edge. तो अगर ऐसा होगा तो मैं कौन सी एज की incoming instruction को print करूंगा स्टेट के अंदर? So there will be a conflict. So what we will do, we will just end up into a conflict. अब इस conflict को हमें resolve करना पड़ेगा. Just you look here. I am taking one example. Suppose there is a state Q in a Mealy machine. Okay, in a Mealy machine ME. There are certain incoming edges and certain outgoing edges. Say this is an incoming edge, this which is marked as B/0. Okay. There is another incoming edge from some state that is also been marked as A/0. There is one more incoming edge with the label B/1 from some state. Okay. And there are certain outgoing edges, say A/1 and say B/1 to some other states. Suppose this is the situation of a particular state in a Mealy machine. Is it clear or not? Mealy machine में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस Mealy मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना. तो मुझे क्या चाहिए, इसकी एजेस से प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन हटा करके मुझे इस स्टेट के अंदर लानी है. इज इट? तो अब अगर मैं यहाँ से प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 0 हटाऊं, ओके, और इसके अंदर ले आऊं, सिमिलरली यहाँ से 0 हटाऊं, इसके अंदर ले आऊं, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों की प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, 0 है. लेकिन अगर मैं इस वाली एज को देखूं तो इस वाली एज पे मुझे प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन क्या मिल रही है, 1. तो अब अगर मैं यहाँ 0 प्रिंट कर रहा हूँ और ये एज यहाँ आ रही है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस क्यू स्टेट में इस पर्टिकुलर बी वाली एज के थ्रू एंटर करता जिसपे कि प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 1 है, बट मैंने यहाँ प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है, 0. सो देयर माय मशीन कैन नॉट बी इक्विवेलेंट. सेम मशीन मेरी नहीं बन सकती अगर मैं जस्ट केवल पिछले प्रोसेस को रिवर्स करता हूँ कि पहले मैंने क्या किया था, स्टेट से प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन को कहाँ ले गया था, इनकमिंग एजेस पे. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकमिंग एजेस से प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन को कहाँ ला रहा हूँ, स्टेट में. इज इट? तो सिंपल इस प्रोसेस को मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या है, हियर आई एम हैविंग ए कॉन्फ्लिक्ट. On this point, I am having a conflict. Is it clear or not, class? Yes, sir. But अगर मुझे अपनी मिले मशीन को कन्वर्ट करना है मूरे मशीन में, तो करना तो यही पड़ेगा कि जो एजेस पे प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन है उसको स्टेट के अंदर लाना पड़ेगा. करना तो यही है, लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो माई दिस सिचुएशन विल बिकम इक्वलेंट टू दिस सिचुएशन. मीन्स अब मैं क्या करूंगा, जहां पे भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट है मैं क्या करूंगा, उस स्टेट की कॉपीज तैयार करूंगा. यानी कि इस स्टेट में कुछ एजेस आ रही हैं 0 प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन के साथ, कुछ एजेस आ रही हैं 1 प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन के साथ. तो मैं क्या करता हूं, इस स्टेट की 2 कॉपी तैयार कर लेता हूं. पहली कॉपी Q/0, इसको मैं क्या देता हूं, सपोज Q0, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 0, क्योंकि अब मैं सेम नाम नहीं दूंगा Q, अब मैं नाम चेंज कर दे रहा हूं, Q0 which is having the printing instruction 0. So this is one state. Then I am having the second state which is having the printing instruction 1 and I will give name it to the Q1. Okay, so Q1 और Q0 करके मैंने 2 स्टेट बना ली, Q1 और Q0 करके मैंने 2 स्टेट बना ली, जिसमें एक में प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 0 है, एक में प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन 1 है. अब जितनी भी 0 प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन वाली एजेस थी वो तो सब किस में एंटर करेंगी, 0 वाले में. ओके, सो यानी कि B, ये वाली जो B/0 थी ये कहाँ एंटर की, इस जगह पे. ऐसे ही A/0 वाली क्या थी, ये कहाँ एंटर की, इस जगह एंटर की. इज इट? और जो 1 प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन वाली थी ये यहाँ एंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये एंटर करते ही गड़बड़ हो जाएगी. सो ये वाली कहाँ एंटर करेगी, ये एंटर करेगा इस 1 वाले में जहां पे 1 प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन है.
अब मैं कैसे कह रहा हूं कि ये दोनों स्टेट Q0 और Q1 मेरी इसी ओरिजिनल स्टेट Q की कॉपीज हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसके जितने भी आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं उनको यहां पर कॉपी करूंगा। इसके दोनों आउटगोइंग ट्रांजिशन क्या है? A/1 किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहा होगा, B/1 किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहा, तो उन्हीं स्टेट्स पे जाएगा with A/1 and B/1. Is it? Similarly, same transition will get copied here also. So यहां से भी उसी पर्टिकुलर स्टेट पे A/1 जाएगा एंड उसी पर्टिकुलर स्टेट पे B/1 जाएगा. So my this situation will get converted into this situation. Is it clear or not, class? अब आप देखिए, अगर मैं पिछली किसी भी स्टेट से आ रहा हूं, सपोज ये कोई स्टेट थी मेरी Q3 जिसपे से B लेकर के मैं इस Q पे आ रहा था तो 0 प्रिंट करना था, तो अब भी देखिए Q3 से आ रहा हूँ B लेकर के और 0 प्रिंट करूंगा। आगे की सारी फंक्शनिंग वैसी है जैसी यहाँ पर थी। इज इट? इसी तरह से अगर A से मान लीजिए Q4 कोई स्टेट थी, ये कोई Q4 स्टेट थी यहाँ, जहां से A लेकर के मैं इस Q में आ रहा था तो 0 प्रिंट कर रहा था। तो अगेन आप देखिए Q4 से A लेकर के मैं इस स्टेट में आ रहा हूं जहां पे मैं 0 प्रिंट कर रहा हूं और आगे की जो फंक्शनिंग है वो एग्जैक्टली सेम है जो इस जगह थी। इज इट क्लियर है? नाउ अगर ये मेरी कोई स्टेट Q5 थी जहां से B लेकर के मैं Q में आ रहा था और 1 प्रिंट कर रहा था, तो अब भी देखिए आप, मैं Q5 से B लेकर के किस में आ रहा हूं? इस Q1 वाली स्टेट में आ रहा हूं जहां पे मैं 1 ही प्रिंट कर रहा हूं और आगे की फंक्शनिंग एग्जैक्टली सेम है जैसे कि ओरिजिनल में थी। इज इट? कि भाई A/1 B/1 जिन जिन स्टेट्स पर जा रहे थे उन्हीं स्टेट्स पर जा रहा है। इज इट? सो अब इस स्टेट से जो पीछे का हिस्सा है ये मैंने कन्वर्ट कर लिया मिले से मूरे में। इज इट? अब आगे का जो हिस्सा है वो कब कन्वर्ट होगा? जब मैं इससे आगे वाली स्टेट जहां पर कि ये A1 और B1 पहुंच रहे हैं, जब उनको प्रोसेस करूंगा तो ये वाले ट्रांजिशंस भी मेरे क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां से प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन हटके कहां चली जाएंगी? कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स में चली जाएंगी। तो इस तरह से आई विल बी डूइंग this process for each and every state in my Mealy machine, and my Mealy machine will get converted into the Moore machine. Is it clear or not, class? Yes, sir. Okay. There is one more thing. मान लीजिए सपोज एक जगह सिचुएशन मेरे पास है कि मेरी ये स्टेट है Q, जैसे मैं कह रहा था ये B/0 आ रहा है, ये A/0 आ रहा है, और सपोज कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी कि A/0 B/0, यानी कि इस क्यू में जितनी भी इनकमिंग एज आ रही है सब पे प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन सेम है, तब क्या मुझे ये ट्विन कॉपीज बनाने की जरूरत है? ना, तब मुझे ट्विन कॉपीज बनाने की जरूरत नहीं। इन दैट केस मेरा एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली आई विल राइट Q/0 एंड देन इट विल बी B एंड A। मीन सिंपल प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन एजेस से हटा करके कहां ले जाऊंगा? स्टेट के अंदर ले जाऊंगा जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मेरे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो जिस भी स्टेट को मैं कंसीडर कर रहा हूं उस स्टेट पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो सिंपली जो एजेस पे प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन है उसको कहां ले जाना है? स्टेट के अंदर। तो एजेस पे जो प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन थी उसको कहां ले गया? स्टेट के अंदर। और मेरी सिचुएशन क्या बन गई? ये बन गई। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वहां पे। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उतनी कॉपीज बनेंगी और जो सेम प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन वाले एजेस हैं वो सेम स्टेट में जाएंगे, ठीक है। जो डिफरेंट प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन वाली एजेस हैं वो डिफरेंट स्टेट में जाएंगे। इज इट? और जो उनके आउटगोइंग ट्रांजिशन ओरिजिनल के थे वही आउटगोइंग ट्रांजिशन जितनी भी कॉपीज आपने बनाई हैं उन सब के रहेंगे। इज इट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम Mealy machine to Moore machine. So Mealy machine to Moore machine conversion is a bit harder than the conversion of Moore machine to Mealy machine. तो ये थोड़ा सा इसमें आपको जो है ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रोसेस क्लियर हो तो let us take one example. Okay, so I am moving to an example. I am taking a Mealy machine. This is the say state Q0. This is the start state, and there is another state Q1, you can say. Is it? Or then it is Q2, and then it is Q3. Is it? अब Q0 से मेरा A पर जाता है Q2, Q0 से A पे Q2 जाता है, Q0 से
A पर Q2 जाता है एंड आउटपुट इज 1. ओके, एंड B पर मेरा Q3 जाता है एंड आउटपुट इज 0. B पे मेरा Q3 जाता है और आउटपुट क्या है 0. इज इट? अब Q1 से A पर Q0 आ रहा है, Q1 से A पर Q0 आ रहा है with the output 0. So I will write A by 0 here. A Q1 is having a self loop on B with the output 1. Is it? अब Q2 से A पर जाता है Q1, Q2 से A पर जाता है Q1 with the output 1 और B पर क्या है सेल्फ लूप है with the output 0. B पर क्या है सेल्फ लूप है with the output 0. Now Q3 से A पर जाता है Q2 with the output 0 और B पर जाता है Q0 with the output 1. Is it? So this is a Mealy machine. I am having a Mealy machine. Again ये Mealy machine है तो चूंकि मैं इसे ग्राफिकल भी कर सकता हूं और ट्रांजिशन टेबल से भी कर सकता हूं. That's why I am writing its ट्रांजिशन टेबल as well. Okay. So ट्रांजिशन टेबल इसकी क्या है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्टेट, एंड ऑब्वियस सी बात है ये स्टेट ओल्ड स्टेट है. ओल्ड स्टेट के बाद it will be divided into two columns, that is after A and after B. After B, and it will be further divided into two subcolumns just corresponding to the new state and output, and here also new state and output. Okay, and let us write this table. Q0 is the start state and its states are Q0, Q1, Q2 and Q3. Is it? So Q0 on A is moving to Q2. Just look here in this transition diagram and fill the entry here in the transition table. So I am moving to Q2 with the output 1. Q0 on B, just look here, moving to Q3 with the output 0. Moving to Q3 with the output 0. Q1 on A, Q1 on A is moving to Q0 with the output 0. So moving to the Q0 with the output 0. Q1 on B to Q1 itself with the output 1. Q2 on A to Q1 with the output 1, and Q2 on B is to Q2 with the output 0. Q3 on A is moving to Q2 with the output 0, and Q3 on B is to Q0 with the output 1. So this is the transition table corresponding to this Mealy machine. Is it clear, class? So we have made a Mealy machine. Now what we'll do, we'll convert this Mealy machine into the corresponding Moore machine. So let me change the color. I have taken the red color pen. So red color से जो भी changes करेंगे वो हमारी Moore machine बनेगी. Okay. So पहला प्रोसेस तो ये है कि हम इसको यहाँ ग्राफिकल में कर लें, लेकिन आप देखिए अगर आपने अभी प्रोसेस को अपने ध्यान से देखा हो तो जहां जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे वहां वहां आपको एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग दो या ज़्यादा स्टेट्स क्रिएट करनी पड़ सकती हैं. जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मान लीजिए अगर दो आउटपुट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो दो स्टेट क्रिएट करनी पड़ेंगी, तीन आउटपुट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो तीन स्टेट. हालांकि यहाँ पे मैक्सिमम दो हो सकते हैं क्योंकि केवल दो ही आउटपुट हैं आपके पास, या तो 0 या 1. मान लीजिए कहीं 0 1 के साथ 2 आउटपुट भी है तो हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन से 0 इन प्रिंट हो रहा हो, कुछ इंस्ट्रक्शन से 1 प्रिंट हो रहा हो और कुछ एजेस से 2 प्रिंट हो रहा हो. तो अगर तीन तरह के कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग तीन कॉपी बनेगी. इज इट क्लियर क्लास? तो ये कॉपीज बनेगी. तो यानी कि अगर हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस करते हैं तो इट मे बी डिफिकल्ट. क्यों डिफिकल्ट होगा? मान लीजिए Q0 पे कॉन्फ्लिक्ट आया, देखिए जैसे आ भी रहा है A by 0 and B by
1, तो यानी कि इसकी 2 कॉपीज बनेंगी, इज इट? अब मैं यहाँ 2 कॉपीज बनाऊंगा इसकी, तो 2 कॉपीज बनाऊंगा, फिर उसके जितने भी आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं वो कॉपी करूंगा दोनों ही स्टेट्स पर। सो थोड़ा सा मेरा डिजाइन, चूंकि नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस भी इंक्रीज होंगे, तो यहाँ मेरा डिजाइन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ग्राफिकल मेथड से इसको करना आई विल नॉट एडवाइज। So what we will do it through the transition table only. Okay, so transition table से करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। मूरे की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। मूरे की ट्रांजिशन टेबल क्या कहती है? ओल्ड स्टेट, ओल्ड स्टेट, एंड देन ओल्ड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। सो आउटपुट बाई ओल्ड स्टेट, आउटपुट बाई ओल्ड स्टेट। उसके बाद मैं कहता हूं मेरी न्यू स्टेट क्या होगी? न्यू स्टेट आफ्टर रीडिंग ए, आफ्टर रीडिंग ए एंड आफ्टर रीडिंग बी, इज इट? सो ये मेरा फॉर्मेट हो गया। अब मेरी स्टेट्स तो कौन सी होंगी? सबसे पहले चूंकि अब आप देखिए, जब मैंने मूरे से मिले में कन्वर्ट किया था तो चूंकि मेरी स्टेट चेंज नहीं हो रही थी तो मैंने सीधे स्टेट लिख ली थी। लेकिन जब मैं मिले से मूरे में कन्वर्ट करूंगा, मिले से मूरे में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी स्टेट बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी? क्योंकि एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मल्टीपल स्टेट्स यहाँ लानी पड़ सकती है, इज इट? तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा मेरी कौन सी स्टेट इस मूरे मशीन में आएंगी। ऑब्वियसली बात है, स्टेट तो इस मिले मशीन की होंगी, बट कुछ स्टेट्स की कॉपीज होकर के आएंगी। सो लेट अस चेक कि कौन सी स्टेट्स की कॉपी होंगी और कौन सी स्टेट्स की कॉपी नहीं होंगी। अभी हमने जो प्रोसेस डिस्कस किया उसमें हमारी स्टेट्स की कॉपी कब बनेंगी? जब उसके आउटपुट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब उस स्टेट के आउटपुट में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर स्टेट के आउटपुट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो कोई कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये कैसे चेक करूंगा किन स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा और किन स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस मिले मशीन की जो ट्रांजिशन टेबल है इसको एनालाइज करता हूं। इस मिले मशीन की ट्रांजिशन टेबल में देखिए Q2 अकर कर रहा है विद द आउटपुट 1। अब मैं देखूंगा और कहीं Q2 आ रहा है क्या? देखिए यहां भी Q2 आ रहा है, बट हेयर Q2 इज कमिंग विद द आउटपुट 0। तो आप देखिए यहां पर Q2 आउटपुट 1 के साथ आया और यहां पर Q2 आउटपुट 0 के साथ आया। यानी कि अगर मैं Q2 में एंटर करूं इस Q0 स्टेट से A के थ्रू तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1। लेकिन अगर इस Q2 स्टेट में मैं एंटर कर रहा हूं इस Q2 स्टेट से ही थ्रू द B, सो आई विल बी प्रिंटिंग ए 0। यानी कि यहां अगर Q2 में एंटर करते वक्त मुझे क्या मिल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट। यानी Q2 की मेरी क्या बनेगी? ट्विन स्टेट बनेगी, कॉपीज बनेगी। एक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉपी बनेगी और एक 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉपी बनेगी। सो दिस इज द मेथड बाय विच आई विल चेक कि मेरी कौन सी स्टेट्स सेम आएंगी और कौन सी स्टेट डिफरेंट आएंगी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप Q3 चेक करिए, Q3 इस जगह पे आ रहा है विद द आउटपुट 0, और कहीं Q3 आ रहा है और कहीं Q3 आ ही नहीं रहा है। यानी कि Q3 जहां भी आ रहा है केवल एक ही प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन के साथ आ रहा है, दैट इज 0। यानी कि Q3 एज इट इज आएगा, इसकी कॉपीज बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली आप Q1 को चेक करिए, Q1 आ रहा है देखिए 1 के साथ, और कहीं Q1 आ रहा है, यस यहां भी Q1 आ रहा है बट 1 के साथ ही आ रहा है। यानी Q1 जहां दो ही जगह आया, जहां भी आया किसके साथ आया? 1 के साथ। यानी कि Q1 स्टेट के आउटपुट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है Q1 स्टेट की कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं, Q1 स्टेट एज इट इज आएगी। तो मैं एक एक करके चेक करना शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले Q0 के लिए चेक करता हूं बिकॉज इट इज द स्टार्ट स्टेट। ओके, आप चाहें तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट मैं सिस्टमेटिकली एक एक करके स्टार्ट स्टेट से सारी स्टेट्स को चेक करूंगा। Q0 के लिए चेक करता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। Q0 इट इज कमिंग ऑन 0 and here you can check that Q0 is also coming on 1. So Q0 is coming on 0, Q0 is also coming with 1. तो यानी कि इसकी मुझे 2 कॉपीज की आवश्यकता, तो मैं इसकी 2 कॉपीज बना लेता हूँ। एक तो मैंने बनाया Q0 0 और एक बनाया Q0 1। यानी कि दोनों Q0 की कॉपीज हैं। देखिए दोनों मैंने Q0 लिखा तो दोनों Q0 की कॉपीज हैं। ऊपर वाला जो सबस्क्रिप्ट है ये 0 मतलब 0 आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये 1 मतलब 1 आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यानी कि Q0 0 से आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। Q0 1 से आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। इज इट क्लियर क्लास? इट इज क्लियर? यस सर। ओके, अब इसी तरह से मैं चेक करता हूँ Q1 के लिए। Q1 के लिए मैंने देखा
यहाँ कहीं Q1 नहीं है, यहाँ नहीं है, Q1 आया है 1 के साथ, यहाँ भी Q1 आया है 1 के साथ, और कहीं Q1 आया ही नहीं, यानी Q1 जहां भी आया है 1 के साथ आया, यानी कि इसकी प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो Q1 स्टेट एज इट इज आ जाएगी मेरी विद द आउटपुट 1। इज इट क्लियर क्लास? इट इज क्लियर? सिमिलरली मैं इस प्रोसेस को अप्लाई करूंगा। अब मैं Q2 के लिए चेक कर रहा हूं, तो देखिए Q2 मैंने चेक किया था 1 के साथ आया है यहाँ, और कहीं Q2 आ रहा है, यहाँ देखिए Q2 आया है 0 के साथ, और यहाँ भी Q2 आया है 0 के साथ, यानी Q2 1 के साथ भी आया है और 0 के साथ भी आया है, तो इसकी दो कॉपीज बनेंगी। सो Q2 0 एंड Q2 1, इज इट? और Q2 0 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा? 0। Q2 1 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा? 1। इज इट? देन Q3 के लिए चेक करते हैं। Q3 एक ही जगह आ रहा है विद द 0, बाकी कहीं Q3 है ही नहीं, क्योंकि देखिए मैंने सर्कल करके मार्क कर लिया, कोई भी जो एंट्री खाली होंगी इससे आपको आसानी रहेगी, केवल खाली एंट्रीज ही देखनी पड़ेंगी। सो Q3 किसके साथ आया है? 0 के साथ, कोई और डाउट है ही नहीं इसके अंदर, तो Q3 क्या आएगा? एज इट इज आएगा। सो Q3 क्या आएगा? वो एज इट इज आएगा विद द आउटपुट 0। इज इट क्लियर? सो मैंने स्टेट्स डिसाइड कर ली, और इस स्टेट्स के क्या आउटपुट आएंगे वो आउटपुट डिसाइड हो गए कॉरस्पॉन्डिंग मूरे मशीन में। अब मुझे क्या करना है? इसका ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीट करना है, यानी कि नई स्टेट क्या होगी? आफ्टर रीडिंग ए में कहाँ जाऊंगा, आफ्टर रीडिंग बी में कहाँ जाऊंगा। अब देखिए मैं सबसे पहले तो Q0 1 और 0, Q0 0 और Q0 1, इनमें से कोई एक स्टेट आप स्टार्ट स्टेट मार्क कर सकते हैं। देखिए आपकी यहाँ पे Q0 स्टार्ट स्टेट थी, Q0 वाज दी स्टार्ट स्टेट। ओके, सो यहाँ Q0 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास दो कॉपीज हैं, एक तो Q0 0 और एक Q0 1। ये दोनों ही कॉपीज स्टार्ट स्टेट का काम कर सकती हैं। सो नाउ यू हैव ए चॉइस कि आप इनमें से किसको स्टार्ट स्टेट बनाएं। आप चाहें तो Q0 0 को स्टार्ट स्टेट बना दें, आप चाहें तो Q0 1 को भी स्टार्ट स्टेट बना सकते हैं। इससे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीनिंग देयर बाई कि जब हम एक मिले मशीन को, सॉरी, जब हम एक मूरे मशीन को मिले में कन्वर्ट करते हैं, सो मूरे से जो मिले कन्वर्जन है that is unique, while जब हम मिले से मूरे कन्वर्ट करते हैं, मिले से मूरे कन्वर्ट करते हैं, so it may not be unique, it may not be unique। जस्ट यू सी हियर, यहाँ मेरे पास दो जो है, चूंकि स्टार्ट स्टेट के दो वर्जन बन गए, तो अब मैं अगर Q0 0 को स्टार्ट स्टेट लेता हूँ तो दिस विल बी डिफरेंट मशीन। अगर मैं Q0 1 को स्टार्ट स्टेट लेता हूँ इट विल बी अ डिफरेंट मशीन। ये बात अलग है कि दोनों ही मशीन की फंक्शनिंग सेम होगी, दोनों सेम आउटपुट मुझे प्रेजेंट करेंगे, सेम आउटपुट मुझे देंगे, बट दोनों डिफरेंट मशीन है। तो दैट्स व्हाई आई से दैट मिले टू मूरे कन्वर्जन may not be unique. It may be unique in some cases, but in some cases it may not be unique. While when I convert Moore machine to the Millet machine, it is always a unique conversion. Moore से Millet का conversion हमेशा क्या होगा? Unique होगा। Is it clear class? Yes sir. तो अब हमारा क्या रह गया कि अब हम इन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस लिख लें। तो अब मुझे क्या चाहिए? Q0 0 या Q0 1 के ट्रांजिशन चाहिए। अब देखिए Q0 0 और Q0 1 दोनों ही किसकी कॉपी हैं? इस Q0 की कॉपी है, इज इट? और Q0 के जो आउटगोइंग ट्रांजिशन है वही कॉपी होने हैं इसके आउटगोइंग ट्रांजिशंस में, दोनों के। हम देखिए पीछे जब डिस्कस किया था, पीछे यही तो डिस्कस किया था कि आउटपुट जो आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं, इनकमिंग ट्रांजिशंस से तो हमने ये आउटपुट हटाना था, लेकिन जो आउटगोइंग ट्रांजिशन थे वो कॉपी करने थे एज इट इज। सो Q0 0 का ट्रांजिशन भी वही होंगे और Q0 1 के ट्रांजिशन भी वही होंगे। इसके लिए मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है Q0 के ट्रांजिशन। सो Q0 का ट्रांजिशन देखिए क्या है? ऑन A इट इज Q2 विद द आउटपुट 1, Q2 विद द आउटपुट 1। अब मैं देखूंगा, यानी Q2 स्टेट पे जाना है, यानी कि Q0 0 से जाऊं या Q0 1 से जाऊं, ऑन A आई हैव टू गो टू द Q2 स्टेट। अब अगर Q2 स्टेट सिंगल है तो वही आ जाएगी, लेकिन Q2 स्टेट भी तो ऐसा हो सकता है कि इसकी कॉपीज बनी हो। अगर कॉपीज बनी हो तो कौन सी कॉपी पे जाना है? तो वो मुझे किससे पता चलेगा? वो मुझे इससे पता चलेगा कि आउटपुट क्या है। आप देखिए Q2 पे तो मुझे जाना है, मगर कौन से वाले Q2 पे जाना है? 1 आउटपुट वाले Q2 पे जाना है। क्योंकि देखिए Q2 की दो कॉपीज हैं आपके पास, यहाँ यू कैन सी हियर Q2 की दो कॉपीज हैं आपके पास, एक Q2 0 विद 0 आउटपुट, एक Q2 1 विद 1 आउटपुट। तो आपको कहाँ जाना है?
आपको जाना है Q2 की उस कॉपी पे जिसमें आउटपुट आपके पास 1 है। वो कॉपी कौन सी है? दैट इज Q2 1। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑन A आई विल मूव टू Q2 1। इज इट ओके और नॉट क्लास? ये समझ में आया कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि Q2 1 पे जाना है? एक बार बता दीजिए। देखिए, मुझे Q0 0 के सपोज ट्रांजिशन चाहिए ऑन A। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, Q0 का A पर क्या ट्रांजिशन है मूरे मशीन में, उसको चेक करूंगा। Q0 का A पर क्या ट्रांजिशन है वो चेक करूंगा। सो Q0 ऑन A मूव्स टू Q2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ Q2 तो आना ही है, लेकिन अगर Q2 सिंगल स्टेट होती तो ठीक है, Q2 आ गई थी। लेकिन Q2 अगर कॉपीड स्टेट है, जैसे यहाँ दो कॉपी बनी है Q2 की, तो दोनों में से कौन सी कॉपी पे जाना है मुझे? 0 वाली पे जाना है या 1 वाली पे जाना है? क्योंकि Q2 तो स्टेट है मूरे मशीन की, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिले मशीन में स्टेट आई है वो Q2 0 आई है और Q2 1 आई है। तो अब इन दोनों में से किसी एक पे तो जाऊंगा, कौन सी पर जाऊंगा? क्योंकि दोनों स्टेट पर तो जा नहीं सकता, वरना क्या हो जाएगा, नॉन डिटरमिनिस्टिक हो जाएगा सिस्टम। जबकि मेरा जो एफ विद आउटपुट है, चाहे मिले मशीन हो या मूरे मशीन हो, ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। तो इन दोनों में से किसी एक ही स्टेट पर जा सकता हूँ, तो कौन सी स्टेट पर जाऊंगा ये मुझे पता चलेगा इस आउटपुट से। Q0 ऑन A आई वॉज मूविंग टू Q2, तो Q2 पे तो जाना है, लेकिन कौन से वाले Q2 पे जाना है? जो आउटपुट 1 दे रहा हो उस वाले Q2 पे जाना है। वो क्या है? Q2 1। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर Q2 1। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? यस सर। ओके, सो ये समझ में आ गया। अब इसी तरह से Q0 ऑन B, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? Q0 ऑन B। Q0 ऑन B इज Q3। ठीक है, Q3 जीरो आउटपुट वाला, लेकिन Q3 है ही केवल जीरो आउटपुट वाला। देखिए Q3 की एक ही स्टेट है, Q3 स्टेट एज इट इज, चूंकि मूरे मशीन में आई है तो Q3 एज इट इज आएगा। इज इट? सो यहाँ मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आउटपुट है, क्योंकि Q3 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास आप देखिए एक ही स्टेट है यहाँ केवल। Is it? So Q0 on B is moving to Q3. So Q00 on B will move to Q3. और चूंकि Q00 और Q01 दोनों एक ही स्टेट के कॉपीज हैं, तो इन दोनों के जो आउटगोइंग ट्रांजिशन क्या है वो क्या होंगे? सेम होंगे। यानी कि जो Q00 के लिए आए हैं वही ट्रांजिशन Q01 के लिए भी आएंगे। सो इट विल बी Q21 एंड Q3। मीन्स सेम जो ऊपर था यही मैंने कॉपी कर दिया एज इट इज। क्लियर है यहां तक क्लास? यस सर। ओके, नाउ सेम आएंगे दोनों के लिए? हाँ सेम आएंगे। जो भी कॉपीज होंगी किसी स्टेट की उनके ट्रांजिशन सेम होंगे। जैसे Q00 है, Q01 है, दोनों Q0 की कॉपी हैं, तो जो भी Q0 के ट्रांजिशन होंगे वही ट्रांजिशन यहाँ आएंगे। देखिए Q0 से Q2 1 पे जा रहे थे विद आउटपुट 1, तो इसलिए Q2 1। अब चाहे वो Q00 से जाएं या Q01 से जाएं। इज इट? तो यानी कि आप दोनों में से किसी भी एक के ट्रांजिशन निकाल लीजिए तो दूसरे के ट्रांजिशन आपको अपने आप पता चल जाएंगे। सेम कॉपी करने और कुछ नहीं। क्लियर है क्लास? यस सर। Okay, so similarly we will write the transition for all. So Q1 के ट्रांजिशन देखिए, Q1 के ट्रांजिशन क्या होंगे? Q1 on A and Q1 on B. So इसके लिए मैं यहाँ मूरे मशीन में, मिले मशीन में चेक करूंगा। Q1 on A is moving to Q0 with the output 0. Is it? Q0 with the output 0. So यानी कि Q0 with the output 0, क्योंकि अभी Q0 स्टेट नहीं है यहाँ मेरे पास, या तो Q0 0 है या Q0 1 है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा Q0 0 पे जाऊंगा या Q0 1 पे जाऊंगा। ओके, सो यहाँ मुझे किससे पता चलेगा? इस आउटपुट से। ये आउटपुट चूंकि 0 है इसीलिए मैं किस पे गया? Q0 0 पे गया। अगर यहाँ आउटपुट मेरा 1 आया होता तो मैं किस पे जाता? Q0 1 पे जाता। इज इट? सो इट इज Q0 0 देन Q1 ऑन B। तो इसके लिए मैं चेक करूंगा यहाँ Q1 on B. Q1 on B is Q1 itself. Okay, Q1 on B is Q1 itself. अब चूंकि Q1 as it is आया है, इसकी कोई कॉपी नहीं है, तो सिंपल लिखना है, इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से Q1 के ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए। इसी तरह से Q2 के ट्रांजिशन लिखिए। अब चाहे Q2 0 के ट्रांजिशन देख लीजिए या Q2 1 के देख लीजिए, दोनों के ट्रांजिशन क्या आएंगे? सेम आएंगे। सो बेसिकली मुझे Q2 के ट्रांजिशन देखने, Q2 on A and Q2 on B. So Q2 on A is Q1, Q2 on A is Q1, और Q1 चूंकि as it is आया है तो Q1 यहाँ सेम आएगा, it will be Q1. ओके,
अब Q2 on B, so Q2 on B is Q2, बट कौन सा वाला Q2? जीरो वाला, क्योंकि Q2 की कॉपीज हैं मेरे पास, ठीक है। सो Q2 on zero, Q2 0, so that's why I will write here Q2 0, and same मैं यहाँ Q2 1 के लिए कॉपी कर दूंगा, it will be Q1 and Q2 0, is it? Then Q3 के लिए करूंगा Q3 on A and Q3 on B. Q3 on A is Q2. कौन सा वाला Q2? जीरो वाला Q2, is it? So it will be Q2 0. अब Q3 on B. So I will check Q3 on B. It is Q0. कौन सा वाला Q0? 1 वाला. So it is Q0 1. Is it? So इस तरह से मेरा ये मिले मशीन जो है वो मूरे मशीन में कन्वर्ट हो गई। तो मेरे मिले मशीन में देखिए केवल 4 स्टेट थी, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, जबकि मेरे मूरे मशीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि मेरी Q0 स्टेट 2 में ब्रेक हुई और Q2 स्टेट 2 में ब्रेक हुई, तो 4 स्टेट तो ये आ गई, और Q1 और Q3 एज इट इज आई, तो इस तरह टोटल 6 स्टेट मेरी मूरे मशीन में आएगी, एंड दिस मूरे मशीन विल वर्क सेम एज द मिले मशीन। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। अब यही काम अगर आपने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किया होता, तो आप जब Q0 को ब्रेक करते, तो आप देखिए Q0 के करस्पॉन्डिंग आप 2 स्टेट बनाते, Q0 0 एंड Q0 1, ओके। हम दोनों में से किसी एक को स्टार्ट स्टेट मानते, तो स्टार्ट स्टेट मान लिया चलिए आपने। अब क्या है, Q0 से जितने भी आउटगोइंग ट्रांजिशन थे, जैसे A पर 1 Q2 पे गया और B पे 0 Q3 पे गया, सो Q2 और सपोज Q3, ओके। सो इससे भी आप क्या करते, A/1, और इससे क्या करते आप, B/0। इसी तरह से फिर आप यहाँ क्या करते, A/1 एंड देन B/0। मैं तो केवल इस Q0 को हटा करके ये 2 स्टेट आती मेरी, और बाकी अभी ये Q1 और अभी Q2 डिवाइड नहीं हुई, आगे वो Q2 भी डिवाइड होगी, तो फिर फर्दर स्टेट बढ़ेंगी, तो उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्रांजिशंस यहाँ कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। सो ये इस मेथड से करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस मेथड एंड आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू डू विद दिस मेथड। इफ यू विश यू कैन डू विद दिस मेथड एज वेल, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बट इट विल बी द कॉम्प्लिकेटेड वन। जो ट्रांजिशन टेबल से कन्वर्जन है मिले से मूरे के केस में, दैट विल बी ईजियर, जबकि मूरे से अगर आप मिले कन्वर्ट करें, तो चाहे आप ट्रांजिशन टेबल से करें, चाहे आप ट्रांजिशन डायग्राम से करें, दोनों ही प्रोसेस आसान है। लेकिन अगर मिले से मूरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू कि आप हमेशा ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से मिले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करिए। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नो सर। Okay, so I hope this method is clear to everyone. This is important because examination में मिले से मूरे या मूरे से मिले कन्वर्जन का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और नॉर्मली मिले से मूरे में कन्वर्जन आता है। मूरे से मिले कन्वर्जन चूंकि काफ़ी सिंपल है, तो नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता। नॉर्मली एग्जामिनर जब सेट करते हैं तो मिले से मूरे का कन्वर्जन सेट करते हैं, बट आने को कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मूरे से मिले नहीं आया है, वो भी आया है, ओके। सो बट कन्वर्जन पे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आता है, सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन दिस कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट, ओके। वैसे भी एग्जामिनेशन में आप अगर एग्जामिनेशन के हिसाब से जब प्रिपेयर करें, तो जितने भी आपके ये कन्वर्जन्स हैं, ये सारे के सारे कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट हैं। 2 वजह से इंपॉर्टेंट है, एक तो इन पे क्वेश्चन जरूर आता है, दूसरा कि कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो एक एल्गोरिथमिक प्रोसेस है, उसमें आपको कहीं एप्टीट्यूड, कहीं दिमाग नहीं लगा। मान लीजिए कोई डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा है, कोई डिज़ाइनिंग में बहुत ख़राब है, तो अगर डिज़ाइन का कोई क्वेश्चन आता है, तो जिसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है वो आसानी से कर पाएगा उसको, जिसकी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है वो मुश्किल से कर पाएगा, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है वो तो केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। उसे हर एक व्यक्ति, चाहे उसका डिज़ाइन एप्टीट्यूड अच्छा है या नहीं अच्छा है, कर सकता है, बशर्ते उसने एक आध बार उसके क्वेश्चंस करके देख रखे हों, उसकी प्रैक्टिस कर रखी हो। सो ये एग्जामिनेशन में आते जरूर हैं, और इनको करना क्वेश्चन मशीन डिज़ाइन करने से ज़्यादा आसान होगा। सो आई विल एडवाइज यू कि आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस पे ज़रूर स्ट्रेस करिए, वो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में गलत नहीं होने चाहिए। दिस विल बी द की टू गेट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स क्लास? यस सर। तो आपके जितने भी कन्वर्जन हैं, जैसे NFA से DFA का कन्वर्जन, एप्सिलॉन NFA से DFA का कन्वर्जन, DFAs के आपस में जो है इक्वलेंस,
मिले से मूरे का कन्वर्जन, डीएफए का मिनिमाइजेशन, ये सारे प्रोसीजरल हैं, इन सबको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट है और करना भी आसान है। थैंक यू ऑल। सो आई एम क्लोजिंग एट दिस पॉइंट।